को ज़िंदा रखना अपने अपने काम में वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है फरीदून, उसके बिना तो काम करने का फ़ायदा क्या है। बजरंगी सीक्वल के बारे में सलमान काफ़ी बार बात करते रहते हैं। बजरंगी कैरेक्टर इज़ ट्रूली एन आइकॉनिक कैरेक्टर और ऑब्वियसली बहुत लोगों से मिलते हैं तो वो बोलते हैं यार वो कैरेक्टर फिर से हमें देखना है। नाउ विद कार्तिक एज वेल बहुत ही क्लियरली एक वो अंदाज़ा हो रहा है कि कि दैट यू गाइज हैव रियली बॉन्डेड वेरी वेरी नाइसली। यू एंड आई नो कि अगर किसी एक्टर के साथ आप उनके ब्लॉकबस्टर के रिलीज़ के बाद आप मिल लो तो 1 घंटा तो सुनना पड़ेगा पिक्चर के बारे में और 1 मिनट के लिए भी उसके बारे में बात नहीं करें। आई फाउंड इट रियली रिफ्रेशिंग। कार्तिक स्टार्ट करते हैं प्यार का पंचनामा से, मोनोलॉग फेमस हो जाता है। उसके बाद उनकी काफ़ी फिल्में उनकी आई और काफ़ी साल उनका एक स्ट्रगल रहा। कार्तिक आर्यन इज द क्विंटेसेंशियल अंडरडॉग इन आवर इंडस्ट्री। फेवरेट फिल्म ऑफ सलमान खान? बहुत मुश्किल होगा ना, इतनी बड़ी फिल्मोग्राफी है उनकी। बट आई थिंक out of all the films that you've directed, which is that one film that Mini Mathur has really liked? Mini's personal favorite till now would be What is Kabir Khan's fuel? What drives you? it's a really privileged life. Best work of Kartik Aaryan? I think Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is the word itself. Salman Khan fans are not very happy with Tiger 3 and they would have wanted Kabir Khan to direct it. कबीर, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी आप तैयार हैं? हाँ ज़रूर। Hi, this is Kabir Khan and you're watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. It's a huge privilege to have Kabir Khan with us. Chandu Champion is coming up. The trailer looks absolutely outstanding and what an amazing filmmaker he is. So Kabir, thank you very much for being with us on Connect Cine. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। Always a pleasure, Faridoon. Good to talk to you. Amazing. All right. So Kabir, as we were discussing a short while back, I think in these times when movies are not doing that well in theater, it's the first look of any film that is really, I think, being noticed. Either it makes an impact or it doesn't. And as far as Chandu Champion is concerned, I think the first poster that came out in itself made everyone sit up and take notice, and the trailer has been absolutely brilliant as well. Are you happy with the response that has been coming your way so far? You're absolutely right, Faridoon. I think the fact that business in the theaters has not really been, we're not really seeing the kind of numbers that we used to see pre-COVID has been a worrying point for all of us. Right. And we realized while making this film that we will have to do something that attracts people to come back and see it as a theatrical spectacle. See this film as something that if we go and see this in the theaters, we will enjoy it much more than watching it on the televisions back home. So every step that we've taken in our promotions has been with that in mind. We were very clear. I was very clear that even the posters that we use, these are all location stills. None of these are posed for in studios, because I just feel though you can post for them in studios, there's a little bit of glamorous element you can bring into that. Nothing like just grabbing a moment from the scenes itself while they're being shot, because they come with a story. So even the first poster of him running in that loincloth with mud all over him, you see it and you realize you want to know what the story behind this is. Where is this boy running away? Where is he? Who is he running away from? And that's sort of worked for all 3 of our posters that we released till now. And I'm really happy with the response we've been getting to the posters and of course to the trailer, which has been hugely liked, and really thrilled with the feedback we're getting on that, and keeping fingers crossed that people decide to come in big numbers back to the theaters on the 14th of June. अगर आप कुछ बताना चाहें कि जो एक एलिमेंट ऑफ पेट्रियाटिज्म फिल्म में है, वो आपने जिस तरीके से इन्फ्यूज़ किया है पूरे आई थिंक नैरेटिव में, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था? वो फरीद जो आपने मेरी पिक्चरें देखी हैं और जिस तरीके से मैं द वे आई डील विद पेट्रियाटिज्म, मेरे को हमेशा वो लेयर्स में आता है। आई नेवर लाइक इन योर फेस पेट्रियाटिज्म की, मतलब स्लोगनियरिंग हो रही है या चेस्ट थम्पिंग हो रही है, और आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट इज़ लाइक दिस, इन द लेयर्स बीनीथ। जो ये कैरेक्टर है मुरलीकांत पेटकर, इनको कोई स्लोगन, कुछ चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, दैट इटसेल्फ इज सो पेट्रियाटिक, सो अपलिफ्टिंग, दैट यू फील प्राउड दैट अ मैन लाइक दिस, a fellow Indian is doing this. He makes you feel proud to be an Indian. He makes you want to stand up and cheer for the country.
and that is very important in Chandu Champion. You know, the story of a soldier, a man who refused to surrender and kept going till he finally realized his dream. राइट जो आपके जो जर्नी आई थिंक बहुत ही फैसिनेटिंग है. हम लोग के बहुत ही डिटेल कॉन्वर्जेशंस हम लोग के हुए हैं. मैं आज देख रहा था यूट्यूब पे तो मैंने नोटिस किया कि आपके इंटरव्यूज़ में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुई हैं जो हम लोगों ने साथ में किए हैं. ये बहुत ही फैसिनेटिंग आपकी जो जर्नी इस वजह से हो जाती है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे. फिर आप मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में आप आते हैं. काबुल एक्सप्रेस इज़ द फर्स्ट फिल्म दैट यू पार्ट ऑफ. उसके बाद आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत चली हैं. आपकी फिल्मों ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं विच हैज़ बीन ट्रूली अनप्रेसिडेंटेड. बजरंगी भाईजान आपकी एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें कि मैक्सिमम जो फुटफॉल्स हैं थिएटर में किसी भी हिंदी फिल्म के लिए वो अचीव करती है. ये जो आपका एक कॉन्फ्लुएंस है कि एक कुछ आप कहना चाह रहे हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए, उसमें एक कोई कहानी है जो कहानी एक कुछ अलग तरीके से आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये एक बॉक्स ऑफिस का एक समझ भी किया कि ये चीज़, ये इमोशंस जो हैं वो लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं. लोग उसमें रोएंगे, लोग उसमें हंसेंगे, लोग उसके अंदर सेलिब्रेट करेंगे. वो जो मिक्सचर आप करते हैं, ये आपका जो एक ऑर्गेनिक एलिमेंट है, ये हैज़ इट बीन लाइक अ ओवर द ईयर्स इट हैज़ इट हैपेंड, या फिर हुआ कैसे वो? बिकॉज ये आई पर्सनली फील दैट्स व्हाट मेक्स कबीर खान यूनिक. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू सेइंग दिस सरिदून, क्योंकि जब मैं एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इस इंडस्ट्री में आया था तो उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्रीज को ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी. आजकल की यंगर जनरेशन बहुत फैसिनेट होती है और बहुत एक्साइटमेंट के साथ बात करती है कि यार आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है. एक तो एक्सेस बहुत बढ़ गया है इंटरनेट की वजह से. बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज हम देखते हैं, OTTs पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं. जब मैं आया था तो इट वॉज ऑलमोस्ट कि कुछ लोग कहते थे यार बताना मत लोगों को तुम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हो, क्योंकि उनको लगेगा तुम बोर करोगे. क्योंकि हमारे जहन में जो डॉक्यूमेंट्रीज हम बोलते थे, हमें आई थिंक वो फिल्म्स डिवीजन की एक बोरिंग डॉक्यूमेंट्रीज आती थी फीचर फिल्म से पहले, जिसमें हमें सबको बैठना पड़ता था 15 मिनट के लिए, वो हमारे दिमाग में डॉक्यूमेंट्रीज होती थी. तो और आज अगर कुछ मेरा यूएसपी है तो यही है कि मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड है. मेरा एक अप्रोच है सिनेमा में, चाहे कितनी भी मेन स्ट्रीम और कमर्शियल स्टोरी टेलिंग हो, एक अप्रोच है कि रिसर्च लेड राइटिंग होती है. हर डिटेल में हम घुसते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर एक रियल कहानी है, या अगर रियल कहानी नहीं है, अगर फिक्शनल भी है बजरंगी की तरह, तो टेक्सचर रियल रहे. कुछ लोकेशन दिखा रहे हैं तो वो रियल रहे, कपड़े रियल रहे, एक दुनिया जो है क्रेडिबल रहे और रियल रहे, और उसमें फिर आप एक लार्जर देन लाइफ कहानी सुना सकते हैं. तो आई थिंक एक बहुत ही ऑर्गेनिक, और जिसे कहते हैं ना कि अभी रेट्रोस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं कि अच्छा ये क्या मेरा अप्रोच था, इसको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलाइज करके एनालिसिस भी कर सकते हैं. लेकिन ऑनेस्टली मैं सोचता हूँ कि फिल्म मेकर ना गट फीलिंग से ही चलता है. तो ये सारी चीज़ें असल में क्या होती है, इंटरनलाइज्ड होती हैं. ये चीज़ें मेरे में इंटरनलाइज्ड है कि मुझे लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे बचपन से फिल्में देखी हैं. बिगेस्ट फैन ऑफ मिस्टर बच्चन. माय मदर यूज्ड टू टेक अस टू ऑल दीज फिल्म्स, तो वो एक है. लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज कराए तो वो भी एक इंटरनलाइज्ड है कि यार दुनिया थोड़ी क्रेडिबल दिखनी चाहिए, लॉजिकल दिखनी चाहिए, रियल दिखनी चाहिए. तो कोशिश यही करी. मेरे यशराज की ट्रेनिंग में भी आदि सपोर्टेड मी अलॉट कि यार ही ऑलवेज टोल्ड मी कि बहुत अच्छा मिक्स है तुम्हारी स्टोरी टेलिंग लार्जर देन लाइफ और एंगेजिंग, ड्रामेटिक, इमोशनल है, लेकिन दुनिया बहुत रियल होती है. एंड आई थिंक आज की ऑडियंस को वो अच्छा लगता है. तो होपफुली चंदू चैंपियन में, क्योंकि ये तो है ही ट्रू स्टोरी, लेकिन इतनी मतलब लार्जर देन लाइफ ट्रू स्टोरी है कि जब मैंने पहली बार इनके बारे में पढ़ा था तो मुझे लग रहा है ये किसी ने झूठ लिखा हुआ है. ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा एक इंसान है जिसने ये सब किया है और हम उनको जानते भी नहीं है. बिकॉज ऑनेस्टली मुझे लगता है जो मुरलीकांत पेटकर ने जो अचीव किया है किसी और मुल्क में, ये हमारे टॉप हीरोज में काउंट किए जाते. बदकिस्मती से हम इन्हें भूल चुके हैं. और अब 50 साल बाद इनको प्रेजेंट करेंगे हम टू द ऑडियंसेस, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट पीपल विल बी शॉक्ड व्हेन दे एक्चुअली सी कि इन्होंने नॉट ओनली व्हाट ही अचीव्ड, लेकिन व्हाट ही हैड टू गो थ्रू टू अचीव व्हाट ही डिड. जी, एक बार आपने मुझसे कहा था कि आपको नई नई कहानियाँ कहने में आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है. अगर आपको सिर्फ कमर्शलाइज ही करना होता अपने आर्ट को, तो आपने बजरंगी भाईजान 2 आपने करी होती. एक था टाइगर सीरीज़ को आप आगे लेके गए होते एज इन टर्म्स ऑफ सीक्वल एज वेल. एक ये रूह को ज़िंदा रखना अपने काम में, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए?
बहुत इंपॉर्टेंट है फरीदून, उसके बिना तो काम करने का फ़ायदा क्या है। वो पैशन के साथ जब आप किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, और हमारे जो मीडियम है वो ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में आप उसको रियलाइज़ कर सकते हैं। जिस पैशन से मैं एक स्टोरी को सेलेक्ट करता हूँ और बोलता हूँ कि अच्छा मेरे को ये बनानी है, वो पैशन मेरे में 1.5-2 साल रहना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसा है। तो अगर रोज़ उठ के वो एक्साइटमेंट ना हो कि यार आज जाके ये करना है, आज जाके ये करना है, अगर वो नहीं रहे तो फिर काम करने का मज़ा चले जाता है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग को निगलेक्ट करें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आगे मौके नहीं मिलते हैं आपको। जी। बट एट द सेम टाइम हम ट्रेडर्स नहीं है, कि आज कॉफ़ी चल रही है तो कॉफ़ी में डील करते हैं, आज अगर सोया बिक रहा है तो सोया में डील करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे थोड़े बहुत हम आर्टिस्ट हैं, और हम वही बना सकते हैं जो हमें बनाना आता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ कि अरे इस किस्म की फिल्में चल रही है मैं ये बना लेता हूँ, नहीं, वो होगा ही नहीं। आई विल 100% फेल इफ आई ट्राई एंड डू दैट। कम से कम मेरे को ये पता है कि मैं अपनी किस्म की फिल्म जो मैं ट्रूली जानता हूँ बनाना और जिसमें मैं बिलीव करता हूँ वो बनाऊंगा, तो चांसेस है कि ये चलेगी, क्योंकि कन्विक्शन से बनी होंगी, एक क्रेडिबिलिटी उनमें होगी। जहां मैं कोशिश करने लगूं किसी और की तरह फिल्म बनाने के लिए, तो वो तो 100% मैं फेल करने वाला हूँ। राइट। तो इसलिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई डोंट वांट टू से इट एज ट्राइंग टू गेट ऑन अ पेडेस्टल एंड से ओ आई बिलीव इन दिस इन माय डूड। ऑनेस्टली मैं और कुछ बना ही नहीं सकता, मैं यही बना सकता हूँ। मैं अपनी कहानी अपने तरीके से ही सुना सकता हूँ, क्योंकि मुझे यही एक तरीका आता है अपनी कहानी सुनाने का। एंड होपफुली आई बीन लकी ऑल्सो कि ऑडियंसेस ने ज़्यादातर मुझे सपोर्ट ही किया है। लॉट ऑफ माई फिल्म्स हैव डन वेल, even some of the films that didn't do well at the box office still resonate with audiences, and I keep meeting people who say कि ये बहुत खूबसूरत कहानी है, ये मज़ा आया। काबुल एक्सप्रेस को 15-16 साल हो गए, आई थिंक कमर्शियली में भी सबसे कम पैसे काबुल एक्सप्रेस नहीं कमाए होंगे, लेकिन आज तक लोग अगर आके मुझे कहते हैं कि आपकी बेस्ट कहानी जो है वो काबुल एक्सप्रेस थी, तो बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स गुड टू बी एबल टू have the ability to keep telling the stories the way you can, because असली में success तो वही है फरीदून। I'm successful till the time I'm allowed to tell stories in my way। जिस दिन मुझे लोग बोलेंगे नहीं अब इस तरीके से बनाओ, उस दिन मेरी सक्सेस खत्म हो गई। क्या बात है। आई थिंक काबुल एक्सप्रेस, आई थिंक आपकी फिल्म की ये भी खासियत है, और मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का उसमें कुछ हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। काबुल एक्सप्रेस आज भी अगर देखी जाए तो चाहे कैमरा वर्क हो या बैकग्राउंड स्कोर, इट इज़ सो स्टनिंग स्टिल दैट इट आई थिंक इट जस्ट सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम। जैसे अगर चंदू चैंपियन की अगर हम एक थीम की बात करें, जो फेलियर से वो डील करता है और जिस तरीके से नेम कॉलिंग होती है, आपने भी अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में आपने आपने एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट, फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से फिल्म नहीं चली, एंड व्हाट यू हैड टू, द वे द सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म व्हिच वाज देयर वाज अ बिट हार्श। 83 में फिल्म के कमाल के रिव्यूज़ मिल रहे थे, पैंडेमिक हो जाता है। लेकिन फिर हमने जिसके बारे में बात भी किया है कि अनफॉर्चुनेट रहा कि सर्टेन ट्रेड के लोगों ने जिस तरीके से जो वजूहत बताई कि बॉक्स ऑफिस में फिल्म ने कि 2 दिन में ही पैंडेमिक हो गया था, एंड ऑब्वियसली थिएटर्स ही बंद हो गए थे। तो फिर भी जो आपने एक एक्सपीरियंस किया, जिस तरीके से सर्टेन चीज़ें कही गई आपको, तो ये आपने जो चंदू चैंपियन का एक जो एलिमेंट है, कुछ क्या आपने अपने पर्सनल उससे भी उसको एक एस्टैब्लिश करने का कुछ है, लाइक हैव यू, बिकॉज यू बीन थ्रू सर्टेन थिंग्स योरसेल्फ एज वेल। वो तो जाहिर सी बात है फरीदून की, अगर मैं कहानी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो उसका एक जो रेजोनेंस है वो मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मुझे समय मैं भी आइडेंटिफाई करता हूँ उससे। एक कहानी है एक इंसान की जिसका एक सपना था, एंड लाइफ थ्रोज एवरीथिंग एट दैट पर्सन टू डीरेल हिम फ्रॉम दैट ड्रीम, लेकिन वो हर बार खड़े होते हैं और हर बार कहते हैं कि नहीं मेरा ये सपना है और मैं उसकी तरफ जाऊँगा। तो वो भी मेरे लिए भी, और मेरे लिए क्या है कि फरीदून मैं कभी ये नहीं भूलता कि मैं कहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में। मैं बहुत लोगों को एक्चुअली बोलता हूँ, कुछ मेरे जैसे जूनियर्स हैं या कुछ कभी कभी मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, एडवाइस के लिए या कुछ, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि ठीक है अगर एक पिक्चर नहीं चली, आगे नहीं चली, आप नेवर फॉरगेट आप किस सपने के साथ आए। मेरा सपना क्या था फरीदून, मेरा सपना था मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जो दिल्ली से बॉम्बे आया, किसी को नहीं जानता था इस इंडस्ट्री में। मेरा सपना कि ज़िंदगी में एक बार बड़े पर्दे पे डायरेक्टर बाय कबीर खान आ जाए, बस ज़िंदगी सफल हो जाएगी। वो हो गया, उसके बाद हर चीज़ जो आ रही है वो बोनस है।
तो मैं ना, और आई थिंक हो सकता है मेरी जो यशराज की ट्रेनिंग है दैट हेल्प की कभी सक्सेस को सीरियसली नहीं लिया, तो सो कॉल्ड फेलियर को भी कभी दिल पे नहीं लिया. नॉट टू से कि बुरा नहीं लगता है. जब 83 didn't do the numbers we were expecting it to do, simply because I personally feel, and I always say this, I feel it's my best film. It's as a director, as a craft, उससे बेहतर फिल्म मैंने बनाई नहीं है. Absolutely. तो ऑब्वियसली जब आपने अपनी बेस्ट फिल्म बनाई है और फिर अलग अरे यार ये हो गया और फिर चल नहीं रही है, यू नो हाउ फिकल द ट्रेड सो कॉल्ड एनालिस्ट आ कि मतलब एनालाइज नहीं कर पाते कि कोई उसमें मेंशन नहीं कर रहा है कि यार ओमिक्रॉन आया, थिएटर्स बंद हो गई, लोग जाने से डर रहे थे. वो सब नहीं होता है, सिर्फ नंबर देख के बोल देते हैं ये चली या नहीं चली. तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली 1-2 महीने के लिए बहुत बुरा लगता है. लेकिन उसके बाद अभी 4 साल बाद जब मैं उसको देखता हूँ तो आई डोंट इवन थिंक ऑफ दैट, क्योंकि 4 साल बाद भी मैं देखता हूँ यार 4 साल हो गए हैं, आज भी एक दिन नहीं हुआ है जब मेरे फोन पे कम से कम 4 मैसेज उस फिल्म के बारे में नहीं है. बिल्कुल. तो उसका मतलब उसका रेजोनेंस बहुत हाई है. और वो फिल्म that's one of the films that I will be remembered by. Absolutely. You know, जब when I finally hang up my boots, जो 2 या 3 फिल्में 4 फिल्में मेरे नाम के अगेंस्ट लिखी जाएंगे, जिनके बारे में बात किया जाएगा, उसमें से 83 जरूर है. तो फिर वो जो एक थोड़ा सा डिप्रेशन आता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है. एंड यू हैव टू बिलीव इन व्हाट यू आर मेकिंग. यू हैव टू बिलीव कि आप उसकी वजह से डीरेल नहीं हो सकते. अब इमीडिएट रिएक्शन होता कि अरे 83 नहीं चली, एंड लोगों ने मुझे बोला भी यार तुम फिर से एक स्पोर्ट्स फिल्म बना रहे हो. क्यों? आई सेड मैं अपनी फिल्मों को ऐसे देखता ही नहीं हूँ. मेरे लिए ये स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है. मेरे लिए 83 भी स्पोर्ट्स फिल्म नहीं थी. स्पोर्ट्स तो बैकड्रॉप होता है, लव बैकड्रॉप होता है, वायलेंस बैकड्रॉप होता है, कहानी तो ह्यूमन स्टोरी होती है. और वो चंदू में इतनी अमेजिंग ह्यूमन स्टोरी है कि मैंने कहा दैट इज व्हाई आई वांट टू से इट, बिकॉज इट इज सच अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ कि उसका बैकड्रॉप आप कुछ भी रखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एकेडमिक्स हो, थ्रिल हो, कुछ भी हो, लेकिन असल में तो उस इंसान, उस कैरेक्टर के साथ आप उस जर्नी पे जाने वाले हो. सो दैट्स बीन माय रिस्पॉन्स ऑलवेज. गो विद योर गट फीलिंग, गो विद द स्टोरी जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है, और डोंट फॉलो कि अच्छा ये सक्सेस लोगी यही करता है. जैसे आपने बोला अगर मेरे को वो करना होता तो मैं आज तक टाइगर ही बनाता रहता या बजरंगी पार्ट 3 बन रही होती. लेकिन मुझे लगता है वो एज अ प्रोड्यूसर वो करना चाहिए, बिकॉज यू नो उस एक फ्रेंचाइज बन जाता है, फिर आप यू नो यू कैन गो फर्दर. बट एज अ डायरेक्टर मुझे हमेशा आज तक तो ऐसा लगा है कि नहीं, मैं फिर से बनाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा. बट हो सकता है इन द कमिंग ईयर्स कुछ एक्साइटिंग आ जाए विद वन ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई हैव क्रिएटेड, जो फिर से मुझे एक्साइट करने लगे. सो नेवर से नेवर, लेकिन आज तक तो कभी इतना एक्साइटमेंट हुआ नहीं है कि एक कैरेक्टर के साथ फिर से वो जर्नी पे जाऊंगा. बजरंगी सीक्वल के बारे में सलमान काफ़ी बार बात करते रहते हैं. जी, तो देखिए ऑब्वियसली बहुत ही वो बजरंगी कैरेक्टर इज ट्रूली एन आइकॉनिक कैरेक्टर, और ऑब्वियसली बहुत लोगों से मिलते हैं तो वो बोलते हैं यार वो कैरेक्टर फिर से हमें देखना है. लेकिन मेरे जहन में बजरंगी भाईजान की कहानी सिर्फ पवन चतुर्वेदी की नहीं है, वो मुन्नी की भी है. और मुन्नी की कहानी का आर्क एक बहुत कंप्लीट हो चुका है. तो अभी आगे बढ़ना है तो ऑफकोर्स बढ़ सकते हैं, एंड कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो व्हाई नॉट. इफ यू आस्क मी अभी कुछ है स्क्रिप्ट के लेवल पे तो नहीं, आइडियाज हैं, एंड देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग वेज ऑफ टेकिंग यू नो बजरंगी फॉरवर्ड. इट कुड बी एडवेंचर्स ऑफ बजरंगी एंड चांद नवाब, इट कुड बी यू नो सो मेनी वेज ऑफ टेकिंग इट फॉरवर्ड. लेकिन एज ऑफ नाउ एट अ स्क्रिप्ट लेवल हमारे पास कुछ नहीं है. यू नो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग. मैं आपका मुकेश के साथ में आपका इंटरव्यू देख रहा था और आपने जिक्र किया कि आपको आपके दोस्त टाइगर बुलाते थे, एंड एक था टाइगर हैपेंड. और बहुत से इवन काबुल एक्सप्रेस में भी बहुत से जो रेफरेंसेस हैं जो आपका जो ये लोग लैंड करते हैं, दैट्स हाउ यू लैंडेड एज वेल. सो बहुत से रेफरेंसेस आपके जो हैं वो पर्सनल स्पेस से आपके आते हैं बहुत हद तक. डू यू इन अ वे enjoy this process when you incorporate your personal references in your movies as well? And I'm saying it especially because of Chand Nawab. Chand Nawab as well. Chand Nawab को आपने जैसे आपने incorporate किया, real life Chand Nawab भी हैं. I think it is fascinating. I think फरीद, I'm a writer director, ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन प्लेस खुद लिखता हूँ. तो जब हम लिखते हैं बेसिकली हम क्या लिखते हैं, जो हमने जिंदगी में पढ़ा है, देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया, यहीं से तो हमारा रॉ मटेरियल आएगा ना, और कहाँ से आएगा. जी. हमने जो एक्सपीरियंसेस करे हैं, जो लिटरेचर पढ़ा है, जो किताबें पढ़ी हैं, जो पोएट्री पढ़ी है, जो सुनी है,
वही उस सब का एक सार जो है निकल के हमारे राइटिंग में आता है, हमारा वर्ल्ड व्यू वहीं से आता है। तो एज अ राइटर हर चीज़ कुछ इंटरेस्टिंग जो दिखती है, कुछ दिलचस्पी चीज़ दिखती है तो हम पाक कर लेते हैं। जैसे आपने बोला चांद नवाब का वीडियो मुझे याद है, हमने देखा तो हंस हंस के मतलब मेरे पेट में दर्द हो गया था हमारे। तो हाँ। मैंने एक मेंटल नोट बना लिया था, यार कभी जिंदगी में ऐसा कैरेक्टर यूज कर सके तो करेंगे। और बजरंगी में जब सेकंड हाफ लिख रहे थे तो दिमाग में आया कि यार अब देखो बजरंगी अब पाकिस्तान पहुंच गया है नाउ, उसको ही नीड्स एन एलाय कि आगे कहानी कैसे बढ़ेगी, वो तो खो जाएगा। तो फिर अचानक आया थॉट कि वो जो जर्नलिस्ट था, अगर वो उसको मिल जाए इमीडिएटली आफ्टर रिकॉर्डिंग दैट वीडियो दैट इज गॉन वायरल, तो फिर इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आ सकते हैं। तो दैट्स हाउ ही वाज पुल्ड इन। तो ये बहुत होता है मेरे राइटिंग प्रोसेस में। ज़्यादातर जो नाम हैं मेरे सारी फिल्मों में, जितने कैरेक्टर्स के नाम हैं, दीज आर पीपल हु आई हैव नोन, except of course if it's a true story then I can't take that liberty. लेकिन if they're fictional characters, वो those are either my friends or relatives or people I've met somewhere in life. राइट। मतलब मुझे याद है एक नाम है बजरंगी में बू अली, तो लोगों ने बोला ये क्या नाम है, लेकिन वो मेरा कज़न है। फर्रुखाबाद में हमारे तो गांव है कायमगंज, वहाँ में मेरा कज़न है, और मेरे को बचपन में भी उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, तो वो मेरे दिमाग में रखा है। दिस केम आउट व्हेन आई वाज राइटिंग बजरंगी। राइट। मुझे याद है कि इजिप्ट में जब मेरे आपसे ऑफ कैमरा मेरे बड़े दिलचस्प आपके साथ में डिस्कशंस रहे, तो मुझे आपने एक बड़ी फैसिनेटिंग से बात बताई, और मुझे वो बहुत आई थिंक आपका जो पूरे पर्सनालिटी में है, आई हैव नोन मैनी फिल्म मेकर्स एंड मैनी पीपल फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री। यू टोल्ड मी कि दैट आपका जो आपके जो ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत जो लम्हे रहे हैं, एंड यू आर अ जर्नी, यू समवन हु ऑन अ कांस्टेंट जर्नी, वो आपके सईद नकवी साहब के साथ में रहे। यू ट्रैवल अराउंड 60 countries with him, and you still maybe you learned the maximum from him, and traveling with him about life, about जी। I think world in general. ये जो आपका एक और अभी भी आपने अपने आप को डिटैच करके रखा हुआ है, यू स्टिल नॉट लाइक अ रेगुलर फिल्म पर्सनैलिटी, यू स्टिल हैव अदर इंटरेस्ट which is fascinating. Do you think that कि ये एस्पेक्ट आपका जो कि आप अपने को एक फिल्म उससे अलग रख पाते हैं, that helps you in terms of constantly reinventing yourself in a way as well? आई थिंक सो फरीदून, ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि नहीं जुड़ना नहीं चाहिए या अलग रहना चाहिए, लेकिन आई थिंक वो इनहेरेंटली एक पर्सनालिटी ट्रेट है। थोड़ा सा मैं एक्चुअली इंट्रोवर्टेड हूँ एज अ पर्सनालिटी, तो एक स्टेप बैक स्टेप पे ही रहता हूँ। आई डोंट समटाइम्स बिलीव लाइक, कभी कभी लोग हंसते हैं जब मैं बोलता हूँ कि नहीं यार आई एम नॉट रियली इन अ सर्कल, जैसे यार क्या बातें कर रहे हो, तो 10 फिल्में कर चुके हो, इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स, यशराज के साथ काम कर चुके हो, सलमान के साथ काम कर चुके हो, इन सब के साथ हाउ वुड यू कॉल योरसेल्फ स्टिल इन? आई सेड इट्स नॉट अबाउट वर्किंग विद द इनर सॉर्ट ऑफ सर्कल ऑफ बॉलीवुड, इट्स जस्ट द वे यू लुक एट इट। मैं अभी भी एक थोड़ा सा डिटैच्ड मेरा एक व्यू रहता है, मतलब मैं दूर से देख के आई कैन बी अ लिटिल ऑब्जेक्टिव अबाउट व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, and therefore I think I've been able to keep all my other interests alive because ये भी सईद भाई ने एक बोला था एक लाइन की, काम बहुत ज़रूरी होता है लेकिन काम आपकी ज़िंदगी नहीं होती है। क्या बात है। आपकी ज़िंदगी में बहुत अलग चीज़ें भी होती हैं, और अगर आप वो उन पे यू वोंट कीप देम एज पार्ट ऑफ योर लाइफ, फिर आपका काम भी सफ़र करेगा, आप यू विल बिकम ब्लिंकर्ड। और एज अ फिल्म मेकर स्पेशली अगर हम सिर्फ एक मतलब सिर्फ ही काम ही करते रहेंगे तो स्टिमुलस कहाँ से आएगा, हमें ट्रिगर्स कहाँ से आएंगे? आई थिंक वो हम विल बिकम वेरी ड्राई एज आर्टिस्ट। कुछ देखा नहीं, कुछ वर्ल्ड व्यू नहीं है, कुछ पढ़ नहीं रहे, कुछ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पिक्चरें बनाए जा रहे हैं, पिक्चरें बनाने जा रहे हैं, स्टूडियो में जा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आप आफ्टर सम टाइम बहुत बोरिंग हो जाओगे, एंड ग्रेटेस्ट डेंजर है आप इररिलेवेंट हो जाओगे क्योंकि यू नॉट कीपिंग अप विद द टाइम्स। राइट। एक और मैं आपसे सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, मैं आपको बहुत सालों से आपको मैं जानता हूँ, you are someone who looks the same the way he did 10 years back. ये जो आपकी जो मतलब जवानी का जो राज है उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं। वो तो आई थिंक आई हैव टू थैंक माय पेरेंट्स फॉर probably giving me good genes. But having said that, I do take care of myself. मैं जो मुझे लोग जानते हैं, they know कि मैं बहुत रेगुलरली जिम जाता हूँ। एक बहुत शौक है मुझे, एंड
इट्स माई मेडिटेशन, इट्स माई मी टाइम। वो जो 1 घंटा जिम में होता है, सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग भी उस टाइम चल रहा होता है। जो थॉट्स आते हैं वो मेरे फिल्म के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे आते हैं, और इट्स माई लाइफ स्टाइल। तो वो एक है मेरा नॉन नेगोशिएबल। शूटिंग के टाइम पे इट्स द बेस्ट। लोग सरप्राइज होते हैं, उनको लगता है शूटिंग के टाइम पे कैसे। मैं शूटिंग के टाइम पे आई एम एट माई हेल्थीएस्ट, बिकॉज इतना रेजिमेंटेड लाइफ होता है। आपको सुबह उठना पड़ता है 5 बजे, आप 12 घंटे शूट करते हैं, उसके बाद आप वापस आते हैं, अब वर्कआउट करते हैं। अब जैसे चंदू चैंपियन में तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि कार्तिक आर्यन वॉज गोइंग थ्रू सच अ ह्यूज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब 39% से 7% बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आप सोच सकते हैं। तो 1.5 साल उसने मेहनत करी है जिम में। तो हम लोग शूट करते थे, और कार्तिक को तो जाना ही जाना था। इट वॉज पार्ट, लाइक इट वॉज हिज ड्यूटी कि जाना ही है जिम में। तो हम सब चले जाते थे। सो वी यूज्ड टू रियली एंजॉय दैट 1 hour that we used to spend together. We used to talk about the day that we've, all the scenes we have shot, what we're going to be shooting together. So that was very fruitful, that interaction, that 1 hour, 1.5 hour in the gym. It kept us healthy, it kept us energetic, and also it was a great space to sort of come together as a team. So I always enjoy that aspect of shooting. ओके, एक बहुत ही आई थिंक दिलचस्प सा आई थिंक जो एलिमेंट आपके आपके आई थिंक पूरे करियर में देखने में आता है, वो है कि यू हैव अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग विद ऑल योर एक्टर्स। अरशद भाई हो गए, जॉन इन से फॉर एग्जांपल इन काबुल एक्सप्रेस, देन नील एंड जॉन एंड कटरीना इन न्यूयॉर्क। आफ्टर दैट सलमान सर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आई थिंक बहुत सालों से जानते हैं हम सब लोग, और बड़े दिलचस्प किस्म के वो इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है। लेकिन सलमान सर का ये होता है कि बहुत बार जो उनके साथ उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो डायरेक्टर्स जो हैं वो कुछ हद तक ये है कि जो जो मतलब वो जो कहा जाता है वो करते हैं। सलमान सर उसमें कास्टिंग भी हो रही होती है उनकी फिल्मों में, और बहुत सारी चीज़ें और भी होती। यू हैव हैड लाइक अ वेरी इक्वल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद सलमान खान, एंड यू ओपनली सेड दैट अगर कोई आपको चीज़ पसंद नहीं होती तो आप उसको वॉइस आउट करते हैं। मे बी दैट इज़ व्हाई आई थिंक ही रिस्पेक्ट्स यू सो मच। सेम विद रणवीर, you are a fantastic chemistry with him. Now with Karthik as well, बहुत ही clearly एक वो अंदाज़ा हो रहा है कि कि that you guys have really bonded very very nicely, and एक आपका एक chemistry है, एक equation है। वो कितना important है आपके लिए अपने actors के साथ में कि वो आपसे मोहब्बत करें और आपके साथ में bonding develop हो? आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है फरीदून। मैं सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि ये ऐसी बॉन्डिंग पूरे क्रू में रही। बिकॉज क्योंकि क्या है कि देखिए, मैं एक कहानी लिखता हूँ, और फिर वो कहानी लिखने के बाद 150-200 लोग पहुंच जाते हैं एक लोकेशन पे, और कभी कभी 1 साल, कभी कभी 6 महीने, कभी 1.5 साल के लिए सब मेहनत करते हैं कि वो विजन एक आप स्क्रीन पे लाए। लेकिन जितना आप उनको इन्वॉल्व करोगे, जितना आप वो आपके ड्रीम और आपके पैशन में कोलैबोरेटर्स होंगे, उतना वो एक्स्ट्रा, दे विल गो द एक्स्ट्रा माइल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कोलैबोरेटर तो एक्टर है। अगर एक्टर और डायरेक्टर की कोलैबोरेशन में सिंक ना हो, तो फिर चांसेस है कि वो विजन गिर जाएगा। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टर के साथ एक रैपो, एक फ्रेंडशिप, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। आई डोंट वांट टू कॉल इट फ्रेंडशिप, बट एक बहुत इजी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि जो भी उसके दिमाग में आ रहा है, उनके दिमाग में आ रहा है, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, हम बोलते रहे, ताकि हम क्रॉस पर्पसेस पे काम ना करें। और ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि और एंड इट्स वेरी नेचुरल कि दो क्रिएटिव लोग एक ही चीज़ पे ज़रूरी नहीं है कि वो एग्री करे। सब अपना अपना एक नज़रिया लाते हैं, एक पर्सपेक्टिव लाते हैं, और वो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई वुड हेट टू से कि आई एम सच अ एरोगेंट क्रिएटिव पर्सन कि मैं बोल रहा हूँ कि आई एम 100% राइट ऑल द टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टर के एक पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं, एंड ट्रिगर्स अ थॉट, एंड आई स्टार्ट थिंकिंग, अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, और ये जो बोल रहे हैं ये आई थिंक विल मेक द सीन बेटर, or will make the character better. Because you must give credit to the fact that all these actors who have reached a certain level of success, ये भी कुछ तो जानते हैं that has made them come to the position that they are in. तो वो collaboration बहुत important है. So an easy communication and a true sense of holding each other's hands and going forward बहुत important है. And कार्तिक के साथ it's been a fabulous journey. Really, मैं कार्तिक से पहली बार प्रॉपर्ली मिला था व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम अबाउट दिस फिल्म। उससे पहले ज़्यादा मैं जानता नहीं था कार्तिक को, एंड जो मैंने सोचा था कि एक आधे घंटे में बात करके निकल जाएंगे, इट बिकेम अ 2.5 hour कॉन्वर्सेशन। और उसमें
एज अ डायरेक्टर आप बेसिकली क्या यही ढूंढते हैं ना कि ये इस इंडिविजुअल के साथ क्या आप अपना पैशन शेयर कर सकते हैं, अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, और ये उस दुनिया में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं. एंड इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन इन्होंने पहले क्या किया है. इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन माई कास्टिंग ऑफ Karthik has nothing to do with his big successful films before that, or that he's that hot rising star and that's why I've cast him. It's because वो energy मुझे दिखाई दी. And I'll tell you one thing which was very refreshing for me, Faridun. I met him actually, I think भूल भुलैया 2 के रिलीज के 15 या 20 दिन बाद मिला हूँ मैं. ठीक है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई थी इनकी फिल्म. वो 2 घंटे में ही नेवर स्पोक अबाउट इट. यू एंड आई नो कि अगर किसी एक्टर के साथ आप उनके ब्लॉकबस्टर के रिलीज के बाद आप मिल लो तो 1 घंटा तो सुनना पड़ेगा पिक्चर के बारे में. बिल्कुल बिल्कुल सही बात. और 1 मिनट के लिए भी उसके बारे में बात नहीं करें. आई फाउंड इट रियली रिफ्रेशिंग. ही वाज ट्रूली इन्वेस्टेड इन व्हाट आई हैड ब्रॉट टू हिम, what the material I was giving to him, and how we could achieve it. And that in that meeting itself, I realized that, you know, I think he will give what it takes to the film, and he had to give a lot. वो फ्रेडी के बाद उन्होंने बहुत बॉडी वेट accumulate कर लिया था. He had to come down from 39% to 7%. He had to learn multiple skills, and even a speaking style. He's famous for his hair. मैंने सबसे पहले ये बोला था, कार्तिक यू सो फेमस फॉर योर हेयर, और मैं तो काट दूंगा क्योंकि आप यू नो हिंदुस्तान फौज में जवान हो. बट विदाउट बैटिंग एन आईलेड ही सेड व्हाटएवर इट टेक्स फॉर द रोल. सो या, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड आई थिंक वी रियली एंजॉयड द जर्नी. एंड आई हैव ऑफन सेड द जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिलीज का जो हमारे 3-4 दिन होते हैं वो लिटरली 3-4 दिन ही होते हैं. उसके बाद खुशी भी 1 महीने के लिए होती है, या डिप्रेशन भी 1-2 महीने के लिए होता है. लेकिन जो अल्टीमेटली याद रहता है वो 1.5 साल की जर्नी जो है, वो आपको याद रहती है. जी. नहीं, आई थिंक इवन 83 में जिस तरीके से आप लोगों ने जो जो क्रिकेट को सीखने का, और जो पूरे जो आई थिंक it was a really long process, and I think that really showed in the final film in terms of how comfortable they were with each other as well as with the game as well. Now अगर हम कार्तिक की भी अगर बात करें तो कार्तिक स्टार्ट करते हैं प्यार का पंचनामा से, मोनोलॉग फेमस हो जाता है. उसके बाद उनकी काफ़ी फिल्में उनकी आई और काफ़ी साल उनका एक स्ट्रगल रहा, वेयर ही डिड नॉट रियली गेट द सॉर्ट ऑफ सक्सेस दैट ही वुड हैव वांटेड मे बी. एंड कांची है, आकाशवाणी उनकी एक फिल्म उनकी आई थी. काफ़ी फिल्में उनकी नहीं चली. इवन प्यार का पंचनामा 2 भी जब आई और वो कामयाब भी हो गई, उसके बाद भी ही डिड नॉट गेट मे बी वॉट ही वॉज लुकिंग फॉर. अतिथि आती है लेकिन डज नॉट डू दैट वेल. Till Sonu Ke Titu happened, and then he becomes this star, and he works very hard after that in terms of marketing and everything. So जो एक पर्सनल उन्होंने फेलियर भी एक्सपीरियंस किया है, क्या आपको लगता है कि वो कुछ हद तक वो एक जुनून उनको इस कैरेक्टर में लाने में मदद मिली होगी? बिल्कुल. आई थिंक यू लर्न अ लॉट फ्रॉम व्हाट वी कॉल फेलियर्स. यू नो, आई थिंक एक जो आदमी का कैरेक्टर होता है, एक जो पर्सनालिटी बनती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज सेटबैक्स. You know, to be able to think back and say, okay, this has happened, now I will push forward and I'll achieve that. And that is something which Karthik has really done in his professional life. And that, of course, जैसे आप बोल रहे हैं, that has a resonance with Chandu Champion and Murlikant's life, because at the end of the day, these are underdog stories. Karthik Aaryan is the quintessential underdog in our industry. Right. ये ग्वालियर के लड़के आए सपने के साथ, and today he is one of the top stars of the industry. And that is why we went back to Gwalior to launch our trailer, because I thought it was a beautiful story around it. Ki a boy from Gwalior goes back to Gwalior with his proudest film to release the trailer amongst his people, and in a sense Murlikant Petkar is that. You know, एक गाँव से एक लड़का with a dream goes forward in life, faces huge setbacks, but still manages to go and achieve his dream. So I think that is what maybe you know, Karthik also resonated with. They're both quintessential underdog stories, whether it's Karthik Aaryan's personal journey and Murlikant Petkar's journey. Right, and what's commendable is, and shows his passion for the film, he went through a personal tragedy with his mama and mummy, but he still went ahead and to Gwalior for the promo launch. So that is really, I mean, you know, I was with him all those days, and that was amazing to see how he held himself. You know, it was such a tragic loss. It was such a huge tragedy that happened out of the blue, literally.
to somebody who he is so extremely close to. He didn't even tell me how close he was with them. You know, finally, when I was speaking to his father, he told me how he had been extremely close to his mama and mami who passed away. And I saw what he was going through, the dilemma he was going through. So, you know, we are on the verge of, bringing out one of his biggest films. At personal level, he was going through that, but he just held on and he said, no, what has to be done has to be done. He chose to not really speak about it, decided to sort of deal with it and process it, internally. But it really showed his mettle as an individual then. Lots of people feel that maybe he can win a national award for this film. Fingers crossed. I think the boy has put in what it takes to get that award. I've seen many people who have done much less get that award. So I feel that he truly deserves all the accolades. One individual award, I think, is not going to be the validation for him. I think he's going to get a lot of love for this role because it's truly. मतलब I hate to say it myself क्योंकि मेरी फिल्म है तो मुझे नहीं ऐसे बोलना चाहिए लेकिन ये career defining character है for Karthik. And again, whatever happens at the box office happens, but he will be remembered for this character for years and years to come. Absolutely. एक बहुत ही दिलचस्प मुझे एस्पेक्ट मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप ट्रेलर्स आप कट करते हैं अपनी फिल्म्स के लिए. अगर हम ट्रेलर की बात करें यहाँ पर चंदू जैन पे मुझे आई थिंक इट्स अ फैसिनेटिंग ट्रेलर. It literally fills you, because मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज के टाइम पे थिएटर्स के लिए, थिएटर बिजनेस के लिए स्पेशली जो आपका ट्रेलर है वो एवरी फ्रेम हैज़ टू बी लाइक रियली समथिंग एल्स फॉर पीपल टू जस्ट स्टैंड अप एंड टेक नोटिस. एंड दिस इज समथिंग दैट दिस ट्रेलर अचीव्स कि वो हर फ्रेम में वो एक कुछ है, चाहे वो डायलॉग्स हों, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेज हैं, या चाहे वो कैमरा वर्क है, चाहे बैकग्राउंड स्कोर है, एवरीथिंग इज लिटरली स्टैंडिंग अप. आपका क्या प्रोसेस होता है in terms of for approving a final trailer? How much time does it take for you? Actually, there's no fixed process for that, फरीदुन. कभी-कभी बहुत लंबा प्रोसेस जाता है. कभी-कभी 3, 4, 5, 6 कट्स देखने पड़ते हैं before you start feeling it. In Chandu Champion, it was the first cut that straight away hit home, and he said, "अरे यार, this is so true to the film. This is hitting the right notes." And बस इसी को थोड़ा बहुत और embellish करना है, and I think we are with it, and it was a unanimous sort of a reaction. कार्तिक ने भी जब देखा, साजिद ने भी जब देखा, मैंने भी जब देखा, even my assistant directors who I rely on hugely for feedback, because I feel your assistant directors keep you relevant because they are from different generations. They don't allow you to become somebody who's lost touch with what's happening in the new generation. So everybody's reaction was, this is so true to the film. It's captured the soul of the film very correctly. And I'm so glad that it resonated with everybody across the board. Because sometimes, you can put in things or create a certain narrative which is not true to the film. And then when people like it, then you're saying, let's keep our fingers crossed that people also like the film. But here, this trailer is so true to the soul of the film that I know that if they like this, they will love the film. Right. Preetham, you've had a long association with him. स्पेशली अगर हम बात करें, सिर्फ अगर हम बात करें जो टाइटल ट्रैक है, आई एम सेइंग आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ Instagram reels right now, that Chandu Champion thing, like when you put it on a reel as a background, I think that literally fills you with goosebumps. Experience of working with Preetham and how crucial is the background score and the songs of the film. Preetham is a natural collaborator with me. It's very simple. I work with Preetham because I love his music. I've been asked sometimes कि आपने इतनी सारी फिल्में करी है, आप प्रीतम के साथ ही काम करते हो. I said, I would like to have the music in my film that I love hearing, right? Every year, when I look back at the year, मैं बोलता हूँ कि अच्छा मेरी 3 या 4 टॉप गाने कौन से थे इस साल के, उसमें हमेशा प्रीतम आता है. So why would I move away from somebody who, one, now that we have such a great working relationship, he understands me, he understands the way I use music, which is very important. He's somebody who reads my scripts
and then comes and says यहाँ भी कुछ कर सकते हैं कबीर, यहाँ भी कुछ कर सकते हैं. So it's a great sort of understanding, and I must at this point also mention Julius. Preetham and Packiam. Julius is a great team, because the way Julius Packiam picks up Preetham's melodies and gives them that bigness of scale in the BGM is also something that really creates an identity for the film. इसमें भी आप देखेंगे, जब आप film देखेंगे, एक जो in fact my favorite melody of the film is yet to be released. It's the theme of the film. It's the backbone of the film. वो अभी आने वाला है. अभी तक जो हमने release किए हैं, these are the more popular numbers, the more sort of, numbers that people will enjoy. But the third song that we're going to be releasing is the soul of the film. तो वो एक हमारा टीम जो है बहुत अच्छा एक बन गया है. We are all in sync with each other. We all know how we want to use the music, because I love using music in my films, and Preetham's melodies are always the melodies that I hear them and I get goosebumps. मेरा भी as I said, हम लोग कभी-कभी filmmaking के बारे में बहुत over intellectualize करके बातें करते हैं, लेकिन actually कुछ नहीं होता है, वो gut feeling ही होती है. और जब प्रीतम मुझे एक कुछ सुनाता है तो I'm not analyzing it, I'm just waiting for my hair to stand on end and get goosebumps. I know, हाँ प्रीतम ये वाला दे दे मुझे. It's literally that. Right. Or when Julius is creating something, if I hear it and I start getting tears in my eyes, or I start getting goosebumps, I know this is the one that's going to work, because it's going to go well with the way the film is being put together. Right, and Julius has been there since Kabul Express. You've known him since from Delhi days. Tiger का भी जो एक I think theme music है, that's something that has come. We studied economics together in Delhi University. Yeah, and he absolutely loves you. I still remember I interviewed him after Tube Light, and so he, I think मुझे लगता है कि आपके सच्चे दोस्त आपके वो होते हैं जब आप when like other people they're criticizing you, but they still stick around with you. And I think he was absolutely bullish about Tube Light. I still remember, like off camera, whatever discussions we had, and I think you guys have been together since a very long time. Finally, something about Sajid Bhai. You guys have collaborated in the past. How important is it? And you get even your production house is part of this film, and Sajid Bhai is there. So how important is it to have like a बहुत कम लोग बचे इंडस्ट्री में, फरीदून, who have that passion for a story and a film, and to mount it in the way that Sajid and I have done for this film. And Sajid is therefore a fabulous collaborator, because otherwise क्या है कि the only drawback of I mean it's good that studios and lots of other entities are coming in to fund films, लेकिन studios tend to become faceless. And when you're dealing with somebody like Sajid, dealing with a person who himself is so passionate about cinema, so passionate about films, and making a story the way it should be made, and not just cutting corners to keep it within a certain a budget that can be more viable. Of course, he's great at having an eye on the viability of a film, and great on being able to get the best for the film in terms of the our contracts with, whether it's with the OTT platforms or with music and everything. But at the same time, he'll never ever compromise the vision of a director just to keep the numbers in check. And that's great to have a collaborator like him, who stands by you like a rock when you're making the film and when you're putting it out into the world. Kabir, we'll end this interview with a short rapid fire, please. Okay, sure. Did you have a dream project? No, I think I've lived out a lot of my dreams, Farideen. So I don't think I will have one sort of dream project that I'm still waiting to put together. I think I've been lucky and privileged कि मेरी काफी so-called dream projects have seen the light of day. Okay, any film that you wish that maybe you had directed? वो honestly हर फिल्म के साथ होता है. आप 6 महीने के बाद आप देखते हैं तो क्या होता है कि हम भी as an individual change होते हैं ना, हम evolve होते हैं. तो जब आप when you look back, almost every film से हाँ इसको थोड़ा change कर देते, इसको थोड़ा change कर देते, इसको मैं ऐसे करता. तो वो तो it's a constantly evolving process. The only one film that I would say that I wouldn't touch a frame of is 83. That film is something that I feel we got exactly what we wanted and the way we wanted it to come out. Right. Okay. And
If you have to change one thing about Tube Light, if you have to remake it now, what would you do it? I don't think the film itself was a problem because I sat and analyzed it. I think what we did is Salman and I pushed the boundaries of where we could take him as a character too far. I think the problem in Tube Light was that we created a character with Salman which was too far from what was comfortable for his fans. I think क्या हुआ था कि जैसे हमने जब बजरंगी बनाई, बजरंगी was again a very radically different character. But Bajrangi was still story and plot driven. Tube Light was very character driven. And I think we pushed and we took Salman into a zone which probably didn't sit well. And, everything actually has to be looked in context. When we talk about Tube Light not working, we still have to see that it did much more than 100 crores. In today's day and age, a lot of big stars films, when they collapse, they don't even do that. So it's just that we were coming from Bajrangi, which is obviously, as you said, one of the biggest hits ever of our cinema, into a film where we, I think, pushed it so much that we pushed him out of the park. So I think यही है कि वो character, I think, didn't go down very well with the sort of Salman fans. And there were reports that Akshay Kumar was supposed to play his brother and then Sohail Khan was cast. नहीं, वो सब conjecture है. Those are a lot of the stories that carry around very very big films. There are lots of stories here about it. Right. Okay, one thing that makes Kartik Aaryan a champion. I think his spirit. His spirit is of a champion. He is completely and totally somebody who sort of goes for the bullseye. And that I've seen over the course of this whole process of making Chandu champion. What he went through in the transformation, and even now, he just never lets up. He's consistently and constantly aiming for the bullseye. Favorite film of Salman Khan, all-time favorite film of Salman Khan as per you? Obviously, apart from what we've done together. Yeah. यार सलमान खान जैसे स्टार की फेवरेट फिल्म बताना तो बहुत मुश्किल होगा ना, इतनी बड़ी फिल्मोग्राफी है उनकी. But I think Dabangg is something that I've really enjoyed. Wanted is something that I've really enjoyed from his sort of more recent film. And बहुत ही मज़ेदार फिल्म उनकी, of course, is अंदाज अपना अपना. Oh wow. Okay. One quality that really charms you in any good film. If it lives with you for several days after you've seen it. There are lots of films you see and you enjoy while you're watching it, but they don't stay with you. लेकिन कुछ फिल्में होती हैं जो आपके दिमाग में घुस जाती हैं और आप वो कैरेक्टर आपके साथ कुछ काफ़ी अरसे तक रहता है. तो वो दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ गुड फिल्म कि 5 दिन बाद भी आप उठते हैं और उस फिल्म के बारे में सोचते हैं. Okay. Out of all the films that you've directed, which is that one film that Mini Mathur has really liked? Mini's personal favorite till now would be Bajrangi and 83. I think New York also. New York, I think, is also something that she really holds in a very high place. New York, one more film that has stood the test of time, and it is still so relevant in so many ways. Ji. So many ways. Absolutely. Yeah. Okay. Yeah, that's always going to be a special film for me. Yeah. What is Kabir Khan's fuel? What drives you? Just love for my work, Faridun. I just love making cinema. मेरे को लगता है कि मतलब it's a really privileged life. You're doing what you love doing and you're being paid for it. It's just, and I really, I'm very thankful that I can have this life where you really are able to pursue your passion, do so many diverse things. Because देखिए हर फिल्म जो होती है एक अपनी दुनिया लेके आती है और आप उस दुनिया में घुस जाते हैं, उसके बारे पढ़ते हैं, उसके बारे रिसर्च करते हैं, उसके बारे ट्रैवल करके चीज़ें देखते हैं, तो पूरा you learn so much that you're growing as an individual with each film. And I just love the process of making the film. It's just that's what keeps me going. Amazing. The most challenging thing about directing a biopic? Capturing the true spirit of what that person's life stood for. A lot of times people tend to praise us for elements like अरे यार वो कपड़े बड़े करेक्ट थे और वो मेकअप बड़ा करेक्ट था और वो तो ठीक है, वो तो गिवन है, आप वो नहीं करोगे तो फिर क्यों बना रहे हो पिक्चर, वो तो करना ही करना है आपको अटेंशन डिटेल. लेकिन आप उस इंसान का जो स्पिरिट है उसको कैप्चर कर सकते हो. वो मैंने रणवीर को भी बोला था when we were doing 83. I told him, Ranveer,
we will try as much as we can to make you look like Kapil Dev because he's a very iconic character and everybody knows him. But it's not a look-alike contest. It's about capturing the spirit. And Karthik को भी मैंने यही बोला था चंदू चैंपियन में. I said it's not about doing everything exactly the way Murlikant, and in the case of Murlikant Petkar तो कोई record ही नहीं है. So there's nothing to even compare with. But can we capture the you just have to somehow internalize that burning fire within Murlikant that he must have had. Imagine a man from a small village in Maharashtra to where he reached. Will you be able to hold on to that fire for that journey of the film? And that's what really is what a good biopic should be. Capture the essence of what that person stood for. Absolutely. Best work of Karthik Aaryan apart from Chandu Champion? I think he's been evolving hugely as an actor. I actually really enjoyed the film just before my film, Satya Prem. I think it was something where I saw a very new dimension to him. I saw an actor completely let go of vanity and of how he's looking, what he's wearing. I saw an actor being able to follow a character very consistently through the film. So I must mention Satya Prem because I think that was truly a very consistent performance for me and a very compelling and credible performance. Great. If you can describe these following actors in one word, please. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is a word itself. It's called Shah Rukh Khan. He's an adjective. You can't add adjectives to him. Kya baat hai? Okay. Karthik Aaryan. Karthik Aaryan in one word for me is very difficult because I've seen so many shades of the boy. But I will use one word which people actually might, I don't know what, but for me, he's an incredibly endearing boy. All right. Salman Khan. Legend that walked this planet. Katrina Kaif. Family. Nawazuddin Siddiqui. Rare talent. One has to thank oneself, or one has to thank the universe that as a filmmaker I got an opportunity to work with a talent like that. Really, I mean, it's the kind of talent that makes you grow as a filmmaker. You know, Salman sir has worked with so many, I think, actors, but I think his bonding with Nawaz Bhai in Bajrangi, maybe I think is one of the best that he's ever had. All right, Yeah, so Kabir, I've taken a couple of comments on the trailer. This is Celeb C. Hardly any movie trailer in Indian cinema has impressed me as much as this one. What a performance, boss. Hats off to Karthik. May this film break records at the box office. Thank you so much for that comment. Really. And there is Pulkit. And the comment is, what the hell is this camera quality, lighting, cinematography? Every shot looks insanely good. Hats off to Sudeep Chatterjee. Sudeep, this was, though Sudeep and I have been friends for years, like from my first film. But somehow we never could, quite get our dates together or sort of work together. So finally in this one, when, we were chatting and I said, what about this one? And it all worked out and I'm so happy. I've really enjoyed this collaboration with Sudeep. Sudeep has really enjoyed shooting this film. I think he loved the script when he read it. He said, this is a story I definitely want to be a part of it. And I think and that is what is coming out in the trailer. Faridun, ये कहानी जो है true story है, लेकिन there's a very fairy tale quality to the story. Because जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगता है यार ये कहानी कैसे ट्रू हो सकती है, तो मतलब इट्स इनक्रेडिबली फैंटास्टिकल. तो वो हमने शूट भी उसको ऐसा करा. इट्स अ ट्रू स्टोरी बट इट लुक्स फेरी टेलिश एंड सुदीप हैज कैप्चर्ड दैट. Everything is real, everything is credible, but yet there's a fairy tale quality to the image that he's created. And that's, I think, what people are finding really magical in the trailer. Absolutely. Okay, ye ya wo, either or if you have to choose one from the following options. Katrina in New York or Katrina in Ek Tha Tiger, better performance? I will never compare performances, but I will always choose Katrina in New York because it is a very new territory. My first film with her, and a bond that was created for life. All right. Salman Khan in Ek Tha Tiger or Salman Khan in Bajrangi Bhaijaan, performance closer to your heart? Bajrangi. I've said this famously that there was a lot of churning between Salman and me in Ek Tha Tiger. It's the process that helped us
discover each other, which led to Bajrangi. So Bajrangi for me is the performance where we both got it together bang on. बट एक था टाइगर द सॉर्ट ऑफ ओपनिंग इट गॉट आई थिंक मेरे ख्याल से शायद बॉलीवुड की हिस्ट्री में जी। तब तक इतनी बड़ी ओपनिंग किसी फिल्म की लगी नहीं थी फर्स्ट डे वाज I हिस्टोरिक think बिल्कुल it was historic. it was unbelievable. historic all right I think that the teaser of Ek Tha Tiger that we created just completely took it to another level. Again, people, I don't know whether they remember or not, the teaser of Ek Tha Tiger has 45 seconds of black and white documentary footage and only 15 seconds of Salman Khan. जब हमने बनाई थी लोगों ने बोला तो पागल हो गए हो गया सलमान खान की पिक्चर में आप सलमान 15 सेकंड के लिए आ रहा हो और 45 seconds ब्लैक एंड वाइट ओल्ड आर्काइवल फुटेज but it just went through the roof. yeah but Salman Khan fans are not very happy with Tiger 3 and they would have wanted Kabir Khan to direct it देखिए अगर if something comes together where the both of us get excited about it, you know, but as I said, I don't feel drawn to characters that I've already lived a life with. right okay कार्तिक इन प्यार का पंचनामा या कार्तिक इन सोनू के टीटू की स्वीटी performance that you think is more charming I would go with the Pyar Ka Panchnama because there was a newness to the book. I'd already seen elements of what he's done in T2 in Panchnama, so I would go for Panchnama. कबीर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैंने आपसे वादा जी। किया था कि मैं आपसे कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछूंगा लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा जी जी आप तैयार हैं हाँ जरूर मटन खोरमा या चिकन खोरमा विदाउट डाउट मटन कोरमा ओके चिकन को मैं आलू बुलाता हूँ वो किसी चीज़ में भी डाल दीजिए वो उसका फ्लेवर ले लेता है मटन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट फ्लेवर सो आई एम अ मटन मैन ऑल द वे थ्रू फैंटास्टिक ओके अफगानिस्तान काबुल एक्सप्रेस या बेरूत फैंटम टफर लोकेशन टू शूट कोई नो कंपैरिजन अफगानिस्तान बाय माइल्स अफगानिस्तान और जो व्हाट वी हैड टू गो थ्रू टू शूट Kabul Express is a story in itself. I think that might be one film script that I might write. कि वो फिल्म हमने बनाई कैसे मतलब that really ran on adrenaline. वो तेरा पहली पिक्चर नहीं होती फरीदुन तो हम छोड़ छाड़ के भाग के आ जाते वापस पहली फिल्म का जो पैशन होता है उसकी वजह से हमने कहा नहीं यार जान दे देंगे लेकिन पिक्चर बना के जाएंगे इसलिए वो पिक्चर बन गई आज वो सब चीज़ें हमारे साथ होती तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बोलते चलो भैया सब घर चलो कहीं और देखेंगे कहीं और फिल्म बनाएंगे That was Right. a Okay. adventure of a lifetime. Absolutely. Okay, Pritam in Bajrangi Bhaijaan या Pritam in 83, a score that you like to listen more often. Very difficult. Both very different moods. So impossible for me especially to because these are two films that are really close to my heart and soundtracks that are very close to my heart. Impossible to choose. And here I must add, not because I'm promoting Chandra Champion, you still have heard only two songs from Chandra Champion. Outstanding album. Outstanding songs and as will happen as that happened in Bajrangi and 83 also, when you see the songs in the film, you'll start loving them even more. Amazing. Okay. चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है या वो दिन मैं तय किया मैं जिएगा और उसके लिए जितना लड़ना पड़े लड़ेगा फेवरेट डायलॉग बहुत मुश्किल होता है to choose from but my favorite dialogue still remains चंदू नहीं चैंपियन है मैं All right. But I think really impactful I think dialogue. I think ये dialogue सुनने के बाद में आपको एक feel आता है. I think कैरेक्टर के लिए आप जब कैरेक्टर के साथ में हम जुड़ने लगते हैं उसकी पर्सनैलिटी की वजह से आई थिंक वो फिर ऐसा है कि फिर तो मतलब वो आपको सिनेमा हॉल में खींच के लेके जाता है विच आई थिंक इज ऑलवेज अ गुड साइन गिवन अ चांस टू शूट अ फैंटेसी सॉन्ग फॉर अ फिल्म कश्मीर या स्विट्जरलैंड लोकेशन दैट यूड लाइक टू चूज कश्मीर any day Kashmir always right in fact in Sonmarg the location for Bajrangi Bhaijaan it has become like a tourist spot now जी अनफॉर्चुनेटली दैट थाजवास ग्लेशियर का नाम ही उन्होंने बजरंगी पॉइंट डाल दिया है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैपन लेकिन जी इट्स पूरा एक सर्किट है बजरंगी का जो पहलगाम में भी है और सोनमर्ग में भी है जहाँ वो आपको घोड़े पे बिठा के अलग अलग जो लोकेशन पे जिस पे हमने शूट किया था वो दिखाते हैं जी ओके जॉन इब्राहिम इन काबुल एक्सप्रेस या जॉन इब्राहिम इन न्यूयॉर्क a performance that is closer to your heart न्यूयॉर्क आई थिंक जॉन रियली
gave it his all in New York. It's a performance that really moves you. That'll always remain one of my favorite John performances. And I think like Chandu Champion, the physical transformation of John in that I think was really commendable. Jay, absolutely. Kabir, as always, I think fascinating talking to you. Thank you very much for your time. Wonderful talking to you, and congratulations for Chandu Champion. I think it looks like a winner all the way, and I'm sure that it's going to score a huge win. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much, Haridun.